that this team is doing a great job and has been able to visualize this program. As in today's informal interaction, I was told that yesterday in 2 sessions, you have gone for looking at that what the new developments are there in the area of the facial recognition and how software is playing a very prominent role. And then you have gone for looking at the item response theory. When I spoke to Professor Dhananjay that what to be done, so I thought that let me make you to sail through this, the basic concepts of a software which is called as NVivo, which helps analyzing the qualitative data. There are many softwares available even for analysis of qualitative data. Many known are there for quantitatives, but in qualitatives also there are many softwares available. Before I go for making you to look at what this NVivo is, I will. My today's agenda is to very briefly introduce you to NVivo and introduce you to FOSS-Viewer and introduce you to Zotero. So I don't know to what extent I'll be able to make you to run through. Because why FOSS-Viewer? Because these days, other than the traditional review of literature and the systematic and the meta-analytic review of literature, the third kind of the review of literature is emerging, which is called as bibliometric review of literature. So in bibliometric analysis, this FOSS-Viewer is a very popular and free tool. It is free of cost. Similarly, there is a Zotero software that is also free of cost with the limited space with the full functionality. Zotero is accessible to everyone for managing your citations. As a researcher, we know that a lot of time we spend after completion of our work, a lot of time, maybe more than a month time we spend in order to manage our citations. तो ये इस लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी इस वेबसाइट उस वेबसाइट और वहां से कॉपी वहां से पेस्ट और फिर उसको एपीए में करें तो उसके 7th वर्जन में करें कि 8th एडिशन में करें एमएलओ में करें कि हार्वर्ड में करें कि आईएसओ में करें. But there are many softwares like Mendeley, like Zotero, like EndNotes, like Crossref. These are there which help you to manage your citation. So quickly, I will make you to go through 3. First is NVivo. If time permits, I will make you to sail through this FOSS-Viewer. And if time permits, I will make you to have a look and feel of Zotero. Let's start with this NVivo. You see, when we talk about qualitative analysis, and when we talk about the software, I think both in common parlance don't go hand in hand. Because usually we feel that it is quantitatives which is done through the software. Because I'm not going into the philosophical aspect of the two, but if you dig down the quantitatives and qualitatives, you find that it is positivism, which is the backbone of quantitative analysis. And the basic of that positivism is that in long run, everything is constant. The other way to look at this quantitative is that the researcher and research both are different. Maybe it is for some of us, it may not be that clear. I will give you another example. That when you are collecting the data through questionnaire, then the moment questionnaire is filled by the respondent is immaterial for us. For researcher, respondent is immaterial.
who has filled the questionnaire, the identity of that respondent is not important as to a qualitative researcher. But when we look at the qualitative data, where the researcher, respondent, and research all go hand in hand, all go together. So respondent is not separated from the response. So instead of going for the philosophical orientation of positivism, we refer constructionism, we refer interpretivism. There we say that the reality is not given. There is nothing called absolute reality. Every objective reality is subjective ones. If I'm seeing something, let's say I see a room, the size of the room is 10 by 10. 5 people are seeing that room, which is a 10 by 10 size, 10 meter by 10 meter. But to some, the 10 by 10 meter appears to be a hall. To some, the 10 by 10 meter room appears to be is smaller for the purpose for which it has been constructed. To some, it is okay, चलता है. यानी कि अगर 10 by 10 मीटर का कमरा है और उसको 5 लोग देख रहे हैं, तो पांचों अगर ऑब्जेक्टिविटी गिवन है, तो पांचों को एक ही तरीके से कमरे को देखना चाहिए, लेकिन पांचों कमरे को एक तरीके से तो नहीं देख रहे होते हैं. Therefore, all 5 people, they are constructing their reality of a room which is of 10 by 10 size. This is coming out of the nurturance, out of the socialization of the people, those who are looking at that room. This is coming out of the parentage. This is coming out of the background which those 5 people, they are carrying. So in qualitative research, response, respondent, and researcher, they all go hand in hand, they all go together. And the respondent is never separated from response. अगर किसी आदमी ने 10 by 10 के कमरे को बड़ा कहा है, तो उसके पीछे उसका एक तर्क है, और किसी ने उसको छोटा कहा है, तो उसके पीछे उसका एक तर्क है. 10 by 10 ये मेजरमेंट के टर्म्स में तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पर इसका इंटरप्रिटेशन के टर्म्स में इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है. देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी. If this subjectivity is the backbone of qualitative research, the qualitative researchers, they often raise a question that this subjectivity will get marginalized when we will use a software. But reality is different. When those who have done qualitative research, those who have gone for soiling their hands in qualitative research, they know that whatever kind of the data they generate, whether it is they are making some phenomenological study, or they are making some ethnographical study, or they are analyzing some narratives, or they are analyzing something else, images, whatsoever. When they go for analysis of the data, then they are using their subjective bias to look at the data, to what, to begin with, qualitative researcher calls as coding. So whatever codes, whatever the pattern, whatever the commonality, the qualitative researcher visualizes, that is the outcome of the subjectivity. And qualitative researchers, they know that in qualitative research, there is, we talk about inter-rater reliability. So what we do that, let's say one transcript is there with us. So we read, we make quotes, then the same transcript we give to the second person, the same transcript we give to third person, and make 2 more raters, 2 more researchers to go through the narrative and make them to identify the quote depending upon what the research question is there. And then 2 or 3 or 4 research scholars, those who have gone through that transcript and have identified the quote depending upon what the research question was, then they sit together और वो आपस में deliberate करते हैं और mull over करते हैं कि अच्छा इस फला टेक्स्ट को आपने ये वाला कोड क्यों दिया था, इस फला टेक्स्ट को आपने दूसरे तरीके से कैसे देखा. और वो 3 लोग 4 लोग बैठ के
उस पे डिलिबरेट करते हैं कि अच्छा इस टेक्स्ट को, इस नैरेटिव को, इस इमेज को, इस ऑडियो को, इस वीडियो को इस तरीके से देखा जाना चाहिए। और जो वो 3 लोग या 4 लोग बैठ के जो डिसाइड कर लेते हैं, वही कोड आगे के ट्रांसक्रिप्ट्स या आगे के नैरेटिव्स, आगे के इमेजेस में यूज किया जाता है। यानी कि आपके रिसर्चर का एक पैटर्न होता है पूरे डेटा की एनालिसिस में। तो ये सॉफ्टवेयर जो आपका पैटर्न होता है, उसी पैटर्न का इस्तेमाल करता है। अब इसमें इस सॉफ्टवेयर को यूज करने में इसको दूसरे और तीसरे और चौथे रिसर्च स्कॉलर को देने की जरूरत नहीं होती है कि वो आपके ट्रांसक्रिप्ट को पढ़े। आपने अगर एक बार इसको कोड कर दिया तो उस कोड के बेसिस पे इट विल गो फॉर क्रिएटिंग ऑटो कोड्स, इट विल गो फॉर क्रिएटिंग द कोड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव गॉन फॉर क्रिएटिंग द कोड्स। अब ऐसा हो सकता है कि आपने, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है कि रिसर्चर बराबर रिसर्च में बना रहता है, तो आपने 4 ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी और चारों को कोड किया और उस 4 के बेसिस पे आपने इस सॉफ्टवेयर को कहा कि बाकी को कोड करो। आपने फिर से पढ़ा, जो कोड्स आपके एक्चुअल कोड्स इमर्ज हुए उसके बेसिस पे फिर से आपने ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा और लगा कि जो आपने कोडिंग शुरू में की थी उसमें चेंज करने की जरूरत है। तो द मोमेंट यू ब्रिंग चेंज इन योर कोडिंग, this software is capable and empowered enough that will go for making change in all the codes of all the transcripts. So therefore, this argument that the software should not be used for qualitative analysis, that is not much tenable, because this software uses the logic what a qualitative researcher actually uses. Therefore, it is only a facilitator. It is not taking over the research. It is not replacing the research scholar. It is making research scholar to make qualitative research more efficient, more effective, and that is how this quality, the use of softwares is very powerful in qualitative analysis. There are many softwares available, as I told you in the beginning. Out of them, few popular ones are, there is Atlas TI, there is Cassandra, there is Max QDA, there is a Transana, and there is NVivo. This NVivo is very old. This is, I think this was started in the year 1981. So 1981 means it is roughly 40 years old. So this is a 40 years old software. It is not a new one. And different avatars of this software have come in last 40 years. And this is managed by a qualitative research society, a group of the qualitative researchers, those who have found the difficulties of qualitative researcher, and they have leveraged the difficulties to take it to the next level. As we know that in qualitative research, there is a process of iteration. There is a process of doing it and again doing it and again doing it. So this software uses that process of iteration and the reiteration, repetition, improving. And as in qualitative research, we find that there are themes not given. The themes are always emergent. So in NVivo also, things are emergent. It is nothing fixated. If you feed your data in SPSS, whatever number you have fed, on the basis of that, every time you repeat your analysis, the results will remain the same. So is not with the NVivo. This with a change in your code, it will go for making change in the analysis. So here, as in qualitative research, the notes, the concepts, the theories are emerging. So this NVivo also goes for looking at that emergent issue of qualitative research. Here, the software is, as it is emergent, therefore nothing is cut and dried.
The research, the qualitative research scholars, they are continuously into the process of improving this software. The present software which you have downloaded, that is NVivo 1.5, and this is the latest which has got released in March 2021. Before that, it was NVivo 12 series which was on, but now this is NVivo 1.5, which is the new generation software. And nothing, I repeat that there is nothing given. It is only emergent which NVivo goes for. Suppose if you don't use a software, then what will happen? Then you would be using pencils, then you would be using papers, then you would be using stickers, then you would be using pen, or you may use Excel. So वो जो pen, paper, pencil, notes, discussion, stickers, उनको रिप्लेस करने का NVivo जो है वो एक माध्यम है, एक तरीका है. And though issues are emerging, it does not mean that you can go for manipulating the data of your choice to get the result of your choice. No, as there is high inter-rater reliability in case of NVivo software, therefore few things it does not make you to change, because those things are deeply grounded into the philosophy of qualitative research. The second issue about NVivo is, or rather in qualitative research, that there has to be some strategy at place and some tactics at place. A strategy of the research is that what you plan to do, that is your strategy, and the tactics is that how you plan to do. So in running this NVivo, what you plan to do is yours prerogative, is researcher's prerogative. There NVivo doesn't interfere. But how you plan to do that, what would be the tactics of doing it, that where NVivo helps you. It is something like this, that you want to prune a tree. एक पेड़ की टहनियों को आप काट छांट करना चाहते हैं. अच्छी बात है, पेड़ की टहनियों को काट छांट करने के लिए उसमें कुछ सिकेटियर की जरूरत होगी, उसमें कुछ लॉपर की जरूरत होगी, उसमें कुछ कटर की जरूरत होगी. ये सारी चीजें तो होनी चाहिए. लेकिन क्या आम के पेड़ की कटिंग वैसे ही होगी जैसे इमली के पेड़ की होगी? तो आंसर है नो. सो the strategy, though the broadly you want to prune the tree, but what kind of a strategy you will adopt when it is mango tree, and when it is what it is called, इमली को क्या कहते हैं, tamarind, when it is tamarind tree, तो दोनों की प्रूनिंग का तरीका अलग होगा. तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आप करना चाहते हैं वो तो आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन कैसे करेंगे? अगर इमली के पेड़ की प्रूनिंग होगी तो ये आपको हेल्प करेगा कि इमली की प्रूनिंग में क्या क्या चीजें चाहिए, और आम के पेड़ की जब प्रूनिंग होगी तो उसमें क्या क्या चाहिए. Therefore, it makes it very powerful a tool in the hands of a researcher. And often we find that there is a contradiction between the strategy and the tactics. करना क्या है और कैसे करना है, इसके बीच में क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत डायलॉग होता रहता है. और क्वालिटेटिव रिसर्चर अगर उसने उसको साइंटिफिकली नहीं देखा है क्वालिटेटिव रिसर्च को, तो कई बार इन द नेम ऑफ a lot of freedom given is not able to take the research to the logical conclusion. But this contradiction of the strategy and the tactics is very well taken care of by NVivo, because it makes you to reconcile these contradictions as you will progress there in this NVivo. When you will do it, then you will understand that what is the meaning of my saying that there is a lot of space given by the NVivo to make you to go for reconciling the contradiction of strategy and the tactics. In NVivo, there is a facility given to you that you can use any kind of qualitative data to analyze
using this software. Any kind of qualitative data, soon when I will be running, it would be more clearer. But here, just to refer, any means any textual data you can go for using. Any image data you can go for using. Any data which is there in CSV format, comma separated value format, that is the Excel's premise, that you can go for using. Any bibliographic data you can go for using for making that NVivo to help you facilitating the analysis. Any image you can go for using. So many variants are there. And what happens usually, suppose you are taking some interview or you are interviewing somebody to generate the data for your qualitative research. तो हम पहले क्या करते हैं कि इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करते हैं और उसके ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के और फिर जाके हम उसमें उसकी एनालिसिस करते हैं, शुरुआत करते हैं, कोट्स बनाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोट्स बनाते हैं. लेकिन NVivo में ये फैसिलिटी है कि अगर आपके पास ऑडियो या वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है तो आप आपके पास ऑडियो है या वीडियो अगर इंटरव्यू है तो उसको ट्रांसक्राइब करने की जरूरत नहीं है. उसको as it is in the audio form or in the video form you can upload there in the NVivo and you can go for making the analysis. There is no need to transcribe it. पर इसकी एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये है कि अभी NVivo हिंदी में अवेलेबल नहीं है. ये 5-6 भाषाओं में है. अंग्रेजी में है, स्पेनिश में है, चाइनीज में है, जापानीज में है और 2-1 और भाषाओं में, 5-6 भाषाओं में अवेलेबल है. अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अवेलेबल इन हिंदी, दो दे आर सर्चिंग फॉर द कोलैबोरेटर. अगर कोई इस पूरे सॉफ्टवेयर को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेगा तो द QSR इंटरनेशनल, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गोज फॉर रनिंग इट, that will make facilitate this NVivo to be used for the Hindi people. एक और इंटरेस्टिंग चीज है NVivo के बारे में कि ये जो सोशल मीडिया का डेटा है, जो आपके फेसबुक का डेटा, जो आपके ट्विटर का डेटा है, जो आपके और सोशल मीडिया अकाउंट्स का डेटा है, ये उसकी भी एनालिसिस कर लेता है as it is. As it is means you simply go to your account, social media account, and you capture. There is a extension of NVivo which is called as nCapture, and with the nCapture when you download that nCapture extension in NVivo, तो जिस भी वेबसाइट पे आप जाएंगे उस पे उसके एड्रेस बार के राइट साइड में, अभी मैं जब आपको आगे बताऊंगा तो शो कर दूंगा कि हाउ टू यूज दैट nCapture, तो वो nCapture का ऑप्शन आएगा. तो आप अपने फेसबुक पे गए और आपने nCapture उसको क्लिक किया तो वो पूरा एज योर वेबसाइट एज इट इज, दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय NVivo, और उस वेबसाइट की एज इट इज एनालिसिस वो कर देगा, उसका कोड बना देगा, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस कर देगा, उसका थीमेटिक एनालिसिस कर देगा, उसमें बता देगा कि आप जिस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, आप जिस तरीके के फेसबुक पे चीजों को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, या जिस तरीके के आपके डिस्कशंस होते हैं, या जिस तरीके के आपके फ्रेंड्स हैं वो क्या पोस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे what kind of the themes are emerging out of your social media site. So it's a very powerful and very interesting and there is a huge amount of playfulness once you start playing with the NVivo. तो जैसे वो बच्चे को खेल में मजा आता है, वो रिसर्चर को जो है उस खेल में बड़ा मजा आता है. So these are a couple of things about your software NVivo which I'll make you to rush through. NVivo के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. ये सिर्फ NVivo नहीं बल्कि किसी एनालिसिस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं. पहली चीज होती है प्रोवाइडिंग द डेटा, दूसरी चीज जो है वो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द डेटा, तीसरी चीज उसकी राइटिंग होती है और चौथा जो है उसका विजुअलाइजेशन होता है. तो NVivo जो है इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइजिंग योर data, that how you want to organize or how you want to
provide the data to this software. Then NVivo helps you to conceptualize the data in terms of creating the codes, in terms of linking the codes, in terms of annotating your writings, in terms of creating notes, in terms of creating references, in terms of grouping. Then it helps you writing. Whatever you read a text and whatever you write, that also is being captured right there in the software. And whatever the link and the network you want to create in your writings, that is being captured, and it is used as a data analysis tool. What I told, that emergent theme is used by NVivo to take it to the next level. And the fourthly, that it helps you to visualize your data through clouds, through maps, and through charts. All functionalities I'll not be able to cover up today, but I will simply make you to look at the NVivo and have the basics of the analysis, and the later on, as you will use this NVivo, you will find that a number of issues are coming, and those issues could be addressed. Maybe a full 2-3 days workshop we can have on this NVivo, or a number of helps are available. There is full series on NVivo available on YouTube, and there is complete help available on the website, where from the QSR International website, where from Professor Dhananjay has made you to download this NVivo. And there are other sources, there are manuals available, and there are books available dedicated to NVivo. However, the books are not available for this NVivo present version. Books are available only till NVivo 12, but those books are good enough to help us to provide the data, to conceptualize the data, to create the references, and to write it, and to visualize it. So maybe in a couple of months, the new version will come, which will help you to look at NVivo in writing through that book, the latest version. But whatever is available, that is good enough to equip us, to empower us to see that how this software works. Now, with this background, I will take you to NVivo. Now you open your NVivo software. I will also share my screen with you, and will tell you that how things are seen there in NVivo. Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. It is. Okay. So, do you see this? That yes, sir. NVivo. Yeah. Okay. बाकी लोगों ने अपना स्क्रीन खोल लिया है, NVivo का सॉफ्टवेयर खोल लिया है. They are opening, sir. They are opening. Okay. सर मेरा क्लिक ही नहीं हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है? क्लिक नहीं हो रहा है? वो ओपन कर रही है सर, वो ओपन कर रही है. हाँ, ठीक है. परफेक्टली फाइन. आज सुबह से मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. I got up in the morning and I was just arranging my things. Then there was some problem. तो मैंने अपने जो मेरा लाइसेंस वर्जन था उसको हटा के
ये ट्रायल वर्जन भी लिया, लेकिन that problem is persisting. I don't know whether it is there at your end or not, but at my end that problem is persisting, but I will tell you that how it is to be done. Shall I go ahead? Of course, sir. Okay. अब देखिए, ये जो स्क्रीन, मेरी वाली स्क्रीन आपको दिख रही है, इसमें लेफ्ट में एनवीवो दिख रहा है और उसके नीचे रीसेंट प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, और उसके बगल में राइट में फाइल दिख रहा है, और ये न्यू प्रोजेक्ट, सैंपल प्रोजेक्ट एंड मोर सैंपल प्रोजेक्ट्स. आई थिंक इट इज देयर विद एवरीबॉडी. धनंजय जी, आपके पास है ये? मेरे बगल में मेरे बच्चों ने सर स्टार्ट कर लिया है, मैं आपका स्क्रीन देख रहा हूँ सर, तो आई एम लर्निंग. उन बच्चों के स्क्रीन पे ये चीज दिख रही है ना, न्यू प्रोजेक्ट. ये शायद लेफ्ट वाला नहीं दिख रहा होगा, ये जोटेरो और ये नहीं दिख रहा, लेकिन राइट सब में दिख रहा है सर. हाँ दिख रहा है ना? हाँ, सब दिख रहा है सर. ठीक है. अब देखिए, ये कह रहा है कि नया प्रोजेक्ट आप खोलना चाहते हैं या सैंपल प्रोजेक्ट खोलना चाहते. इसके पास एक सैंपल प्रोजेक्ट है, इसके पास कई सारे सैंपल प्रोजेक्ट्स हैं. जो पहला सैंपल प्रोजेक्ट आपके पास आएगा वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन हम सैंपल प्रोजेक्ट पे अभी नहीं जाएंगे. मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूं, उससे शायद थिंग्स वुड बी बेटर. अभी आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए. तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. न्यू प्रोजेक्ट स्टेप 1 ऑफ 2. पहले जो है इस प्रोजेक्ट का वो टाइटल मांगेगा. बोलो. ठीक सर. जी सर. मांगा उसने. हाँ. अब इस प्रोजेक्ट का टाइटल डाल दीजिए मन की बात. इस प्रोजेक्ट का टाइटल हमने डाला मन की बात. बाकी इसमें भी डिस्क्रिप्शन वगैरह उसको छोड़ देते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम देयर. यस, दिस इज गुड इनफ. नाउ वी से नेक्स्ट. अब नेक्स्ट में कह रहा है कि डिस्प्ले, ये को जो कुछ है हमने कह दिया यस, और ये ऑटो सेव हमने कह दिया कि इफ यस इट विल बी डिसेबल. डिसेबल मत कीजिए, इसको एबल रहने दीजिए. और डिस्प्ले 15 मिनट बाद ये आपको वार्निंग देगा कि अगर 15 मिनट से आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट में वार्न करेगा कि सेव कर दें. जो कुछ आपने काम किया है अपने आप उसको सेव कर देगा. हमने कहा क्रिएट प्रोजेक्ट. तो इसने मन की बात का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है. इज इट क्रिएटेड फॉर एवरीबॉडी? यस सर. ओके. एक्चुअली मैंने आज की एनालिसिस के लिए ये मन की बात को रखा. एक्चुअली मैंने मोदी जी के मन की बात की एनालिसिस की हुई है, और ये जो कि काफी इंटरेस्टिंग है इस नाते, और सबको पता है. Therefore, I have gone for using this Man Ki Baat, taking you to this Man Ki Baat project. This creates a better connect with the audience. अब आप मन की बात जरा गूगल पे जाइए, और गूगल पे मोदी जी की वेबसाइट को एक्सेस कीजिए. मन की बात डालिए, मन की बात लेटेस्ट ले लेते हैं. ये स्क्रीन पे आ गया आपके. आ गया धनंजय जी? हाँ सर. ये पहली वेबसाइट है www.pmindia.gov.in. हाँ, ले रहे हैं. हाँ, आ गया सर. आ गया. अब देखिए, इनकी पहली वेबसाइट, ये YouTube पे मोदी जी की ये मन की बात 27 जून 2021 वाली अवेलेबल है, और ये उसका ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है. यस, ये सबके पास मिल गया है. हाँ ये सर, ये आ गया है.
चलिए इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी कर लीजिए। ट्रांसक्रिप्ट ऊपर ही होगा, ऊपर ही इसके। इसको सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर लेते हैं जी सर। और हम एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, वर्ड फाइल क्रिएट करते हैं और उसको मन की बात जून 2021 नाम दे देते हैं। और उसमें सेव कर लेते हैं जो ये ट्रांसक्रिप्ट है मोदी जी की। इज इट फाइन? यस सर। इसको सेव करते हैं। अब जरा देखते हैं कि कुछ और ट्रांसक्रिप्ट्स इस मन की बात की और भी ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल है क्या। ये देखिए, ये तो अभी हमने किया 27 जून 2021 की। इसके बगल में जो 30 मई 2021 की, इसको भी ले लेते हैं। और इस वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और जहां हमने पहले एक फाइल क्रिएट की थी वर्ड की, यहां फिर दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं, मन की बात मई 2021, और वहां पे ये ट्रांसक्रिप्ट पेस्ट कर देते हैं। तो मन की बात के दो फाइल्स हमारे पास, अभी दो फाइल से ही काम करते हैं, बाकी स्कॉलर्स जो है वो बाद में इसको देख सकते हैं। Up till here, whatever I am saying, am I making little sense? Yes sir, we are learning and we are trying to. चलिए अब देखिए, ये जो आपके पास इंटरफेस खुला हुआ है, जो अभी मेरे स्क्रीन पे विजिबल है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये वाला कंपोनेंट है एनवीवो, जो लेफ्ट साइड में है, इसको कहते हैं नेविगेशन पैन। थ्रू दिस वी नेविगेट। और ये जहां पे फाइल खुली हुई है, इसको कहते हैं लिस्ट व्यू। सो दिस इज नेविगेशन व्यू एंड दिस इज लिस्ट व्यू, एंड दीज आर रिबन्स। ये जो ऊपर है फाइल, होम, इंपोर्ट, ये जो है रिबन्स हैं, दीज आर रिबन्स। सो तीन चीजें हैं, अभी चौथी चीज अभी सून इट विल कम। सो नेविगेशन, लिस्ट एंड रिबन। अब देखिए, नेविगेशन में एनवीवो जो लेफ्ट टॉप पे लिखा हुआ है, उसके नीचे है जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, मन की बात। और .nvp ये एक्सटेंशन है। एनवीवो में जब भी कोई आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो एनवीपी एक्सटेंशन से सेव करेगा। जैसे डॉक की फाइल, वर्ड की फाइल डॉक या डॉक से सेव होती है, एक्सेल की फाइल एक्सेलएस या एक्सेल एलएस से सेव होती है, और उसी या पीपीटी वाली पीपीटी जो पावर पॉइंट है वो .pptx या पीपीटी से सेव होती है। उसी तरीके से ये .nvp से सेव होगी। अब इसके रिबन्स को देखिए, ये जो ऊपर जो रिबन्स हैं, इस रिबन में पहला रिबन है फाइल, दूसरा रिबन है होम, तीसरा है इंपोर्ट, चौथा है क्रिएट, एक्सप्लोर, शेयर एंड मॉड्यूल्स। So as I told you that for every software, the first point is providing the data. So this software, it has, for what project you have created, Man Ki Baat is there with you, but this software currently is not having any inputs of the data. So we will go to import. Up till here, is it fine? Yes sir. अब इंपोर्ट हम फाइल्स करेंगे। इंपोर्ट वही दो फाइल्स जो मन की बात वाली अभी हमने क्रिएट की थी, वो जहां भी आपने सेव किया है वहां जाइए
और वो दो फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ये फाइल्स आर वी टुगेदर अप टिल हियर? Yes. Yes, sir. अब देखो बेटा, ये इंपोर्ट फाइल्स में ये वाला डायलॉग बॉक्स आ गया होगा। Yes, sir. हमने कहा इंपोर्ट, तो ये दो फाइल्स जो मन की बात है मई 2021 और जून 2021, ये दोनों फाइल्स को इसने इंपोर्ट कर दिया। This how it is appearing on your system? Yes, sir. That's the same. गुड। अब जरा पहले वाले फाइल पे डबल क्लिक करो, तो ऐसे आ गया। Yes, sir. ये पहली वाली फाइल है मई 2021 वाली, और इसके नीचे ये जून 2021 वाली। जून 2021 वाले पे क्लिक करो तो जून 2021 वाला भाषण आ गया मोदी जी का। नाउ देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस स्क्रीन। द फर्स्ट इज द नेविगेशन व्यू, the second is this list view where our files are appearing, the third is this ribbons, and the fourth, this one is called as detailed view. Whatever transcript, whatever audio, whatever video, whatever n capture you will capture, that will appear there in the list view. Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वालिटेटिव रिसर्चर क्या करता है कि इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ता है। माय डियर कंट्रीमैन, नमस्कार। ऑफन इन मन की बात देयर इज अ वॉली ऑफ योर क्वेश्चंस। दिस टाइम आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, आस्किंग यू क्वेश्चंस, सो लिसन केयरफुली टू माय क्वेश्चंस। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन? अभी ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम पढ़ेंगे, और जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हम इस ट्रांसक्रिप्ट को कोड करेंगे। तो हमने क्या कहा कि डिफरेंट क्वेश्चंस, आस्किंग यू क्वेश्चंस, सो लिसन, आस्किंग यू क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस, डूइंग समथिंग डिफरेंट, आस्किंग यू क्वेश्चंस। हमने कहा इसको कोड करो। अगर इस चीज को हमें कोड करना है, जिस भी चीज को कोड करना है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे व्हाटसएवर वी वांट टू कोड, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि क्या करें, इसको कोड क्रिएट कर दें। तो आपने कहा कि हाँ कोड क्रिएट कर दो, तो ये पूछेगा किस तरीके का ये कोड है, ये सेंटिमेंट का कोड है या जेनेरिक कोड है या रिलेशनल कोड है। व्हाटएवर डायरेक्शंस यू विल गिव, इट विल क्रिएट अ कोड फॉर यू। यहाँ पे उसका लेवल आप बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, और उसके बेसिस पे कोड आप क्रिएट। जैसे यहाँ पे आपने इसका कोड का जो है वो कहा कि ये चाइल्ड कोड है, आपने उसको कहा कि इसको पेरेंट कोड है। that you know that how we go there in our qualitative analysis, that we go for making open code, we go for making axial code, we go for creating different parameters. Usually there are 3 types of codes, so on the basis of what is the level of code, it goes for creating a code for you. जैसे ही आप करेंगे code selection to the new code, ये एक कोड आपके राइट में जो नेविगेशन व्यू है वहां पे इसने एक कोड क्रिएट कर दिया है। उसका आप नाम देना चाहते हैं, उसका नाम दे दीजिए। न्यू कोड का नाम इसको लेके इसका नाम बदल दीजिए। इट वुड बी रीनेम्ड व्हाटएवर कोड you want to, whatever name you want to give. I will not go into these details. I will go for making you to get introduced to this in vivo. इस तरीके से आप पूरे उसको कोड कर सकते हैं। उस कोड करने, जो कुछ भी आप कोड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट NVO will understand that this how the coding in this document is done, and on the basis of that आप जितने भी फाइल्स इसमें अपलोड करेंगे सबकी कोडिंग उसी के बेसिस पे कर देगा। ये तो है कि रिसर्चर के कोड के
बेसिस पे, रिसर्चर के कोडिंग के बेसिस पे पूरे डॉक्यूमेंट को कोड करना। एनवीवो इससे आगे एक स्टेप करता है, दैट इज that on its own it goes for coding and it goes for creating the first level open code for you, which helps researcher to understand that how this transcript or how this image or how this data is behaving. What is that? I will not code here. हम ये जो अभी वाला ये जो कोड है, इसको हम कह रहे हैं कि इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं। एवरीथिंग इज वेरी यूजर फ्रेंडली, इट इज द इंटरफेस इज वेरी गुड। हर जगह आप जहां पे क्लिक करके राइट बटन अपने माउस का दबाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के बेसिस पे आप जो कुछ भी करना चाहें, दैट इज अवेलेबल टू यू। Now you come to this navigation view and click to files. यहां तक जो मैंने कहा, am I making sense? Yes, sir. Okay. अब देखिए, ऐसा करते हैं कि मन की बात की दोनों फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट बटन दबा के दोनों फाइल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहली चीज, सॉफ्टवेयर को डेटा चाहिए और डेटा के बाद उसकी प्रोसेसिंग चाहिए, उसमें राइटिंग चाहिए और उसका विजुअलाइजेशन चाहिए। तो प्रोसेसिंग के लिए आप कैसे प्रोसेस करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस करना चाहते हैं, दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। आप इसको एनोटेट करना चाहते हैं, इसमें कोड क्रिएट करना चाहते हैं, इसको लिंक करना चाहते हैं, इसमें रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एज पर योर रिसर्च क्वेश्चन यू विल गो फॉर डूइंग इट। उसके बाद आप इसका विजुअलाइजेशन करेंगे। What that visualization is, that I want to see that how this entire data is, and as I told you that I can go for selecting the text and creating the code, connecting those codes. I can go for creating memos, I can go for annotating, connecting those annotations and the notes and the codes। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि अच्छा कुछ इसमें कॉमन अपने आप कोई थीम इमर्ज होके आ रही है क्या, मोदी जी के इन दो मन की बात, इन दो भाषणों में क्या कोई कॉमन थीम इमर्ज होके आ रही है। तो हम जाएंगे अपने रिबन पे, जो ऊपर वाला जो हमारे पास रिबन दिख रहा है, जिसमें फाइल है, होम है, इंपोर्ट है, क्रिएट है, एक्सप्लोर है, शेयर है, मॉड्यूल है। सी, इंपोर्ट का भी हमने इस्तेमाल किया अपने दो फाइल्स को अपलोड करने के लिए। अब हम एक्सप्लोर पे जाते हैं, और इज दिस एक्सप्लोर विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. और एक्सप्लोर पे हम कहते हैं कि वर्ड फ्रीक्वेंसी पे हमने क्लिक किया। इज दिस डायलॉग बॉक्स अपीयरिंग? Yes, sir. आ रहा है? बेटा तुम्हारा क्या नाम है? Akansha, sir. आकांक्षा, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ, yes, sir. Visible. ये एक्सट्रीम लेफ्ट में जो दिख रहा है बेटा, ये नीले वाले, इसको क्या बोलते हैं? Navigation view. और उसके बगल में जो राइट में है रेक्टेंगल, उसको क्या बोलते हैं? That is list view. The top one is ribbon, and the utmost right, that is detailed view. राइट। अब बेटा डिटेल व्यू में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है आकांक्षा? So here we have opened the dialog box for word frequency. ओके। और ये जहां पे अभी हाईलाइटेड है जिस रेक्टेंगल में, वहां पे फाइल एंड एक्सटर्नल्स दिख रहा है। Yes, sir. उससे बगल में सेलेक्टेड आइटम्स दिख रहे हैं, Items. And then और select उसके बगल में folder. सेलेक्टेड फोल्डर्स दिख रहे हैं। सेलेक्टेड आइटम्स पे आओ, तो ये दो फाइल्स खुल गए, मन की बात May 21 और मन की बात June 21। इन दोनों फाइल्स के एनालिसिस हम करना चाहते हैं, इस नाते दोनों फाइल को हमने लिया है, राइट? Yes, sir. और हमने कहा ओके। अब इसने दोनों फाइल सेलेक्ट कर ली। अब उसके नीचे देखो, लिखा हुआ है डिस्प्ले वर्ड्स 1000 मोस्ट फ्रीक्वेंट, और उसके नीचे लिखा हुआ है विद मिनिमम लेंथ ऑफ 3। दिस इज दैट एनवीवो
will go for finding out 1,000 words in those two files which are frequently reoccurring, and the length of those words would be minimally would be 3, यानी 3 words ARE, ये जैसे 3 वर्ड्स जो कुछ भी हो, उन मिनिमम 3 वर्ड्स को एक साथ लेके और उस 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे 1000 वर्ड्स को ये क्या करेगा, ये तुम्हारे सामने रख देगा. In qualitative terms, it will create a code, 1000 codes of minimum 3 words. अब इसमें यहाँ पे राइट में जहां पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूं वहां पे लिखा हुआ है रन क्वेरी. आकांक्षा दिख रहा है? Yes, sir. क्लिक दिस रन क्वेरी. अब इसने 1000 वो वर्ड्स आपके सामने रख दिए जो मोदी जी के इन 2 स्पीचेस में है. किशोरी लाल, फ्रेंड्स, नाउ, वन, राजेश, विलेज, कंट्रीमैन, दिनेश, और किशोरी लाल 10 बार आया है. सॉरी, किशोरी लाल का जो टर्म है वो उसमें 10 वर्ड्स हैं, फ्रेंड्स में 7 है, नाउ में 3 है, वन में 3 है, और किशोरी लाल 40 बार आया, फ्रेंड 36 बार आया, नाउ 33 बार आया है. और पूरे टेक्स्ट में इसका क्या वेटेज है इस वर्ड का, वो आपके इस 4th कॉलम में दिख रहा है. इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. लेकिन ये 1000 वर्ड्स हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, तो मैं इसको 1000 को 25 पे ले आता हूं. I want 25 most frequently occurring words there in our analysis, and I say that the words, I don't want that words of 3 letters, I want words of 5 letters. वो words जिसमें 5 letters हो, मैं उसे चाहता हूं, और ऐसे 25 most frequently occurring words आने चाहिए. फिर मैं रन क्वेरी पे जाऊंगा और रन क्वेरी करूंगा, तो अब मेरे पास ये 25 वो वर्ड्स हैं जो इन 2 भाषणों में बहुत फ्रीक्वेंटली अकर किए हैं, जिसमें पीपल है, कंट्री है, ऑक्सीजन है, कोरोना है, किशोरी लाल है, फ्रेंड्स है, राजेश, विलेज, कंट्रीमैन, दिनेश, so on and so forth. Is it making sense? Is it all right? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, इसको थोड़ा सा और देखते हैं. इधर इस लिस्ट व्यू को छोटा कर देते हैं. तो ये ग्रुपिंग एक दिख रहा है आकांक्षा तुम्हें यहाँ पे, ग्रुपिंग? Yes, sir. अब देखो, ग्रुपिंग के 5 ऑप्शंस हैं. पहला है एग्जैक्ट मैच, दूसरा है स्टेम्ड मैच, तीसरा है सिनोनिमस मैच, चौथा है स्पेशलाइजेशंस, और पांचवा है जनरलाइजेशंस. मीनिंग देयर बाय कि अभी तक इसने टॉक, टॉक्स, टॉकिंग इनको अलग अलग किया हुआ है, लेकिन ये अगर हम इसको ग्रुपिंग ऐसे कर देंगे तो ये टॉक और उसके जितने स्टेम वर्ड्स हैं वो एक साथ कर देगा, और अगर इसको नीचे कर दें तो उसके जितने सिनोनिम्स हैं, कम्युनिकेटिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, कन्वर्सिंग, वो एक साथ कर देगा. उसी तरीके से उसके जितने स्पेशलाइजेशंस हैं, जितने जनरलाइजेशंस हैं, सब एक साथ कर देगा. सो सी द पावर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, दैट it has capacity to analyze the text on the basis of auto code, that is on the basis of what is the frequency of reoccurrence of the words in the text, and it can group the words on the basis of 5 different logics. मैंने इसको सारे लॉजिक्स एक साथ कर दिए, और फिर रन क्वेरी, हर काम करने के लिए रन क्वेरी करना पड़ेगा एनवीओ में. अब ये 25 वैसे वर्ड्स ले आएगा जो जनरलाइज्ड हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग हैं. नाउ द लिस्ट इज देयर विद अस. इज इट ओके आकांक्षा? Yes, sir. That's making sense. Okay, and see that in detail view, look at this bottom ones where the data is emerging. Right to this data of the detail view, right now the cursor is there at summary. Yes,
Yes, sir. Visible. और इस समरी के नीचे वर्ड क्लाउड है, तो इसको प्रेस कर दो, तो देखो एक सुंदर सी चीज अभी इमर्ज होके आएगी. This is a word cloud of 25 most frequent occurring words. Actually, these are not words, these are quotes. These are open quotes. अब इस वर्ड क्लाउड में तुम तरमीम करना चाहते हो, उसको विजुलाइज करना चाहते हो, तो ये ऊपर दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से करोगे तो ये अलग अलग इसके विजुलाइजेशंस होते हैं. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ these visualizations, that you can do later, because these things are quite bringing a lot of playfulness there in the software. So from summary, it has gone for giving the data, that what is the length of the word, how many counts are there, and what is the weight of the word there in the entire narrative. Then we can create the word cloud, and then the same presentation, the same data could be presented in the form of the trees. The bigger the box, the bigger the size of the rectangle, is speaking about the higher frequency of the occurrence of that word there in the narrative what we are using. And then it helps. अब ये जो open code है उसकी clustering कर रहा है, cluster analysis कर रहा है words की. इसके बाद हम cluster create करते हैं to see that this how the cluster is created. रीजन, कंडक्टेड, मूविंग कंट्री, और ये कहां से ये चीजें मिली हुई हैं और वो फाइनली कहां पे मर्ज कर रही हैं. और यहाँ पे रिसर्चर का अपना होगा कि ये क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. दिस इज ओनली हेल्पिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा विच इज देयर विद यू, दैट व्हाट इज द रीअकरेंस ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ दोज वर्ड्स आर connected with each other, or in other words, that what kind of the correlation is emerging out of it. Is it making sense? Yes, sir. अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आकांक्षा? It's nice to play with this app. Yes. अब देखो बेटा कि ये जो वर्ड क्लाउड है, इसमें तुम्हें लगता है कि यार ये दिनेश जो है ये तो नाम है, और ये नाम तो मेरे एनालिसिस में इसका कोई काम नहीं है. और एक राजेश का भी इस्तेमाल किया है मोदी जी ने. अब जो इसमें वर्ड्स जो छोटे आ रहे हैं इसका मतलब कम अकर हो रहे हैं, और जो बहुत प्रोमिनेंटली इमर्ज होके आ रहे हैं वो ज्यादा अकर हुए हैं. सो ये दिनेश तो हमारी एनालिसिस में इट हैज नो रोल. सो व्हाट आई विल डू, दैट आई विल पुट माय कर्सर एट दिनेश, then click the right button of my mouse, and I will say that I don't want this word. So what I will do, that is this dialog box there on your screen? So can you please repeat once again? See, this Dinesh is a name, therefore the name is not playing any role there in my entire schema of analysis. Right? But as I told you that the software is taking the reoccurrence of the word. So Modi ji has gone for using a character Dinesh in his speeches. So Dinesh is appearing. I don't want Dinesh, the name of Dinesh in my analysis. So what I will do, that I will take my cursor at Dinesh, keep my cursor there at Dinesh, and press the right button of my mouse. Is it done? Yes, sir. और इस सबसे नीचे में क्या आ रहा है आकांक्षा इस डायलॉग बॉक्स में? Add to stop words list. तो क्लिक कर दो इसको, तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा. हम कह देंगे ओके, राइट. Yes, sir. रन क्वेरी. Now Dinesh is gone. All right. Yes, sir. इसी तरीके से राजेश की जरूरत नहीं है. नाम है, हमारे एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं है, तो हम राजेश को भी ऐड को स्टॉप वर्ड कर देंगे, ओके करेंगे, रन क्वेरी. राजेश विल ऑल्सो डिसअपियर.
Is it making sense? Yes, sir. Yes, sir. So here the software is helping us to understand that what kind of the broad codes are emerging in the text, in the data, what we have collected, what we have gathered through different sources. This software is method neutral. It has nothing to do with phenomenology. It has nothing to do with the narrative analysis. It has nothing to do with the ethnographic. It is not a method specific software. It is neutral software. Now go to explore again. In the previous visualization of the data, what we did, we went for word frequency. And we looked at that how the words are frequently occurring. And there we found that this Kishori Lal ko bhi hata do, stop word kar do, okay kar do, run query kar do. तो किशोरी लाल जी भी यहां से चले जाएंगे. Okay. Now go to explore again and now go to query wizard. Is this dialog box appearing? Akanksha? Are you there? Yes, sir. ये क्वेरी विजार्ड में गए धनंजय जी? जी सर, जी सर. ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ? हाँ. आ गया? जी सर. और इसमें पहला जो सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट वो है सी वेयर द पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन कंटेंट. हमने कहा नेक्स्ट. अब ये पूछ रहा क्या आप पर्टिकुलर आइटम कौन सा ढूंढ रहे हैं. तो हमने कहा कि भाई क्योंकि आजकल देश की बात बहुत हो रही, तो हमने कहा भाई देश की बात बता दो. तो हमने कहा रन. अब जो चीज हमने कोड के थ्रू 25 वर्ड्स निकाल के देखे थे उसी का एक दूसरा विजुअलाइजेशन देखिए. सॉरी. हाँ सर, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है. अभी फिर से रीस्टार्ट हो गया. Is it okay? Yes, sir. ओके. तो हमने अभी क्या किया, हम एक्सप्लोर में गए, एक्सप्लोर में क्वेरी विजार्ड में गए, क्वेरी विजार्ड को क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ. वी आर अप टिल हियर, आर वी टुगेदर? Yes, sir. और इसको हमने नेक्स्ट किया और नेक्स्ट में हमने ये ग्रुपिंग जो है लास्ट वाली जनरलाइजेशन की कर दी और यहाँ पे हमने कंट्री टाइप कर दिया और कहा कि रन. तो इसने क्वेरी रन कर दी. इसने कह दिया कि साहब मन की बात में पहले वाले में 151 बार कंट्री का इस्तेमाल हुआ है और दूसरे में 124 उसके रेफरेंसेस हैं. अब वो रेफरेंसेस क्या हैं ये टेक्स्ट में आपको बताएगा कि जो आपने शब्द वहां पे बताया है, कंट्री, इंडिया, उससे रिलेटेड स्टेट, ये सारी चीजें उस टेक्स्ट में कहां कहां अपीयर हो रही हैं उसका रेफरेंस बता रहा है. Yes, sir. Got it.
और ये जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो आपको दिखा रहा है कि भाई ये यहां से हमने रेफरेंस लिया है, और ये जो है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज वर्ड ट्री। वर्ड ट्री में ये बता रहा है कि ये देखिए, ये यहां यहां ये चीजें इमर्ज होके और कन्वर्ज हो रही हैं, और यहां से ये डाइवर्ज हो रही हैं। Am I making sense? So just last part once again. This बेटा ये वाली चीज देखो, ये ट्री तुम्हारे सामने आया है। हाँ, yes sir. तो ये इसका मतलब क्या है कि जो हमने कंट्री से कंट्री को के वर्ड को सर्च किया है उसको इसने एक्सेस बनाया, और उसके बेसिस पे ये बताया कि साहब आपकी पूरी एनालिसिस में जब कंट्री को मैं अपने सेंटर में रख रहा हूं तो ये सारी चीजें जो है कंट्री के लोग पीपल पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, और जो पीपल के लेफ्ट वाले ये वाले जो टेक्स्ट हैं ये इस तरीके से आपके नैरेटिव में लगे इमर्ज हो रहे हैं, और इनका कन्वर्जेंस यहाँ पे है, और या ये शब्द यहाँ पे ये सेंटेंसेस पीपल पे खत्म हो रहे हैं और ये सेंटेंसेस पीपल से शुरू हो रहे हैं। Understood sir. राइट? Yes sir. This how the researcher is enabled and facilitated through NVivo। अब उसके पास इस पूरी एनालिसिस की मैप है। अब वो जो कोड करेगा अपना, अभी तो ये जो कोड हुआ है ये कोड किस पे है, ये सिस्टम का अपना किया हुआ ऑटो कोड है, और उसके बेसिस पे इसने सारी एनालिसिस की है। When you will make the change, when you will create your own code, as I told you in the beginning, then it will make the analysis accordingly. Then all these things, what is emerging automatically on the basis of the repetition of the words, this will be happening on the basis of what codes you will create. Am I making sense, Akanksha? Yes sir. Yes. Okay. अब एक चीज और आपको बताता हूं इसी पे, जो हमारे सिस्टम में अभी काम नहीं कर रहा है, आपके सिस्टम पे को काम करना चाहिए। टुडे मॉर्निंग द प्रॉब्लम अकर्ड। यू गो टू द फर्स्ट फाइल, आइदर ऑफ द फाइल्स। लेट मी क्लोज दीज। ये जो हमने एनालिसिस अभी की है इसको मैं ये डिटेल व्यू में क्लोज कर रहा हूं सारा। ओके, ऑल दीज गॉन। अब मैं पहली फाइल पे जाके राइट क्लिक करता हूं। इज इट देयर आकांक्षा विद यू? Yes sir. और हमने इसको ऑटो कोड क्रिएट किया। ये डायलॉग बॉक्स आ गया। Yes sir. मेरे सिस्टम में इसके आगे की एनालिसिस नहीं होगी, आप अपने सिस्टम में कीजिए। ये थीम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आप आइडेंटिफाई सेंटिमेंट्स कीजिए। आर यू एबल टू चूज दिस आइडेंटिफाई सेंटिमेंट, आकांक्षा? No sir. कर लिया है? We cannot No. select it further sir. Actually, पहले बेटा ये इस फाइल पे जाओ, कर्सर फाइल पे जाओ, एक बार क्लिक करो फाइल पे, उसके बाद कर्सर का राइट क्लिक करो, राइट आई मीन कर्सर में माउस राइट क्लिक करो। कर दिया? ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि नहीं? सर यहाँ तक सेम चल रहा है सर, वी आर स्टॉप्ड एट द सेम पॉइंट। ओके, वो मेरे ख्याल से इस शायद सॉफ्टवेयर में कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम, मे बी वी वुड बी एबल टू रिजॉल्व, दे वुड बी एबल टू रिजॉल्व, वी मे राइट, आई विल राइट टू देम। हमने ऑटो कोड किया यहाँ पे और आइडेंटिफाई सेंटिमेंट्स किया। ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है तुम्हारे पास बेटा? हाँ, ये आ रहा है सर। नेक्स्ट कीजिए। ये आ रहा है?
Is it appearing? धनंजय जी आ रहा है? आकांक्षा? No, sir, it is. नहीं आ रहा है? चलो फिर से पहले वाले मन की बात पे कर्सर ले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक बार कर्सर वहां पे प्रेस करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, माउस के राइट क्लिक करने पे ऑटो कोड आता है, आइडेंटिफाई सेंटिमेंट, नेक्स्ट, उसके बाद कोड सेंटेंसेस. इज इट अपीयरिंग? No, sir. नहीं आ रहा है मेरे में. इसके आगे ये एरर आ रही है. यू कैन ट्राई लेटर, maybe there is some issue there in the software. This error is appearing. What happens that when you go for auto code and identify sentiment and click next, and either you choose to code the sentence or code the paragraph and you say finish, then if the software is working properly, what it does, it helps you analyzing the sentiment of your text. Is it fine, Akanksha? Is it fine, Akanksha? सर यहाँ से हम लोगों के सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो रही है. वो जो प्रॉब्लम थी सुबह वो हम लोगों में भी हुई, कुछ ही सिस्टम में वो हो पाया था, हम लोग उसको कर रहे थे, लेकिन वहां से आगे सर सभी स्टक हो गए हैं. हाँ तो वो मेरे ख्याल से ये शायद जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है उसके लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है. जी सर. ये एनीवे, इसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस. This is called as sentiment analysis. That is also a very powerful tool in qualitative sentiment analysis. का मतलब कि जो आपका नैरेटिव है उसमें जो रेस्पोंडेंट है उसने कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है अपने नैरेटिव में, और हर पॉजिटिव, गुड, अला, वाव, ग्रेट, इसको हर पॉजिटिव वर्ड को वो एन वीवो 1+ देता है, और हर नेगेटिव क्यू को बैकग्राउंड नॉइज क्या हो रहा है देखना भाई. ये मेरी आवाज आ रही है धनंजय जी? आ रही है, क्लियर है. अच्छा ठीक है. तो what I'm saying that this is called as sentiment analysis, and there are many more things which we can use when we are playing with this NVivo. जैसे इसमें आपने देखा जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट एनकैप्चर, फाइल्स, सर्वे, क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी, नोट्स, कोड बुक्स, ये सारी चीजें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को ये इंपोर्ट कर लेता है. डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को ये आपके लिए
I mean it collects and it helps you making the analysis. जैसे आपको मैं दिखाता हूं कि I don't use LinkedIn, sorry, I don't use Facebook. पर अगर आप मैं LinkedIn का अपना अकाउंट खोलूं और उसको साइन इन करूं तो ये LinkedIn के इस अकाउंट को यहां पे आप देखिए जो एड्रेस बार है इसके राइट में ये स्टार बना हुआ है, दैट इज फॉर बुकमार्क। उसके राइट में स्टार के राइट में जोटेरो बना हुआ है और उसके राइट में ये स्लांटेड ट्री बना हुआ है। दीज आर द एक्सटेंशंस। सो अगर मैं स्लांटेड ट्री को क्लिक करता हूं और एन कैप्चर पे क्लिक करता हूं तो दिस वेबसाइट, this account of mine, that is the LinkedIn account of mine. So in your case it would be Facebook account, it could be Twitter account, it could be other social media account for which there is a login required that you can go for capturing. It will capture for you, and once it is captured, when you import, it says go to Ncapture. And here you see that my LinkedIn account is there with the NVivo. When I import it, the Ncapture, my website of the LinkedIn social media website, that would be there available with the NVivo. और वो उसको उसकी एनालिसिस करने के लिए now it would be accessible to us. और ये अब लिंक्डइन पे जाके अगर मैं इसका सेंटिमेंट एनालिसिस करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे लिंक्डइन के प्रोफाइल में क्या किस तरीके की चीजें इमर्ज होके आ रही हैं, या लिंक्डइन के प्रोफाइल का मैं जो है वो वर्ड क्वेरी, वर्ड फ्रीक्वेंसी रन कर सकता हूं, इसमें क्वेरी कर सकता हूं, इसको विजुअलाइज कर सकता हूं, इसके कोड्स निकाल सकता हूं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन गो फॉर मेकिंग असेसमेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ conversations I'm engaged with my friends there on my LinkedIn account, so on the Facebook account, so on the Twitter account, what kind of the regional association I have, what are all people from the different parts of the world, they are associated, connected with me, they are in my LinkedIn account, what kind of organizational affiliations are there कि मैं एज अ टीचर बाकी देश दुनिया के किन किन कॉलेजेस, किन किन यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूं. एवरीथिंग वुड बी एक्सेसिबल देयर इन दिस NVivo just by accessing that social media website. Is it making sense? Yes, sir. Yes, sir. This you can practice. Now quickly I will make you to run through the FOSS viewer, the bibliometric tool. When I'm closing it, it is saying that do you want to save the changes to Man Ki Baat? I'm saying no. If you say yes, your file would be saved. If you say no, then it will not be saved. This NVivo would be closed. Now आपको FOSS viewer भेजा था हमने धनंजय जी? नहीं, वो नहीं आया था सर. दूसरी क्या मैंने पब्लिश और पेरिश भेजा था? ये मेरे ख्याल से सर वो दूसरा कुछ था. Harzing.com बोल दो. क्या है बेटा? सर सेकंड सॉफ्टवेयर आपने जैसे सेंड किया था NVivo के साथ. दो भेजे थे ना हमने? यस सर, सेकंड वाला जैसी सॉफ्टवेयर. तो सेकंड वाला क्या था? So second one is for bibliometric analysis, that was Jeffrey given there. गेफी. अच्छा गेफी कुछ तो नहीं करते हैं, दूसरा कुछ करते हैं. देखिए आपको बता देता हूँ. गेफी इज ऑल्सो अ टूल for your bibliometric analysis. But Gephi has little limited use. I will tell you that what this bibliometric analysis is.
See, other than Gephi, there is another software which is called as FOSS Viewer. I will take you quickly to this. I'm going to Google, and in Google, I'm searching for FOSS Viewer, VOSVIEWER. FOSS Viewer. It is written as VOS Viewer, but pronounced as FOSS Viewer, as it is there in case of your German word. So V is pronounced as F. Are you able to see this FOSS Viewer? Yes, sir. Yes, sir. जब इसको क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसमें इस डाउनलोड FOSS Viewer कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा, ये तुम्हारे सिस्टम में आ जाएगा. This is bibliometric analytic tool free of cost. इन Vivo तो पेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और इस तरीके ये जो हमारे जहां पे मैं कर्सर बॉटम पे अपने सिस्टम पे कर रहा हूं, ऐसा एक आपके पास साइन आ जाएगा, दिस इज FOSS Viewer. अब देखिए FOSS Viewer क्या करता है. This is emerging. This bibliometric analysis is emerging as one of the most recent thing in research called. This is used for bibliometric review of literature, which as lot many things are there helping you to use the data for analytics. So this is the domain of research analytics, which helps you creating a bibliometric data, giving you insight that who are the people who are working in this domain, what are the researches being done there in this domain. जैसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो इस एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन कौन से लोग हैं, किस किस टॉपिक पे वो लोग काम कर रहे हैं, किस किस जर्नल में हमारी चीजें पब्लिश होके आ रही हैं, कौन कौन इंस्टीट्यूशंस इसमें काम कर रहे हैं, सारी चीजें एक जगह मिलती हैं. आई विल क्विकली मेक यू टू गो थ्रू. तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा. यहाँ पे हमने क्रिएट किया और क्रिएट करके ये डायलॉग बॉक्स आया. यहाँ पे हमने कहा कि बिब्लियोमेट्रिक डेटा क्रिएट करो, और बिब्लियोमेट्रिक डेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिब्लियोमेट्रिक डेटा ये मांगेगा. वन इज फॉर द वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, डायमेंशंस एंड पबमेड. The other is that RIS, that is the research information systems, EndNote and the RefWorks, and the other is for the Google Scholars and others. The first one is paid. Web of Science, for that you need subscription. So for Scopus, so for Dimensions, and so for PubMed. This is largely free, and this is absolutely free. So whatever you want to kind of the data you want to access, that you can access. अगर हमने सेकेंड वाला सेलेक्ट किया है तो ये 3 तरीके का फाइल्स को जो है सपोर्ट करेगा. हमको RIS फाइल चाहिए. हम RIS फाइल, मैंने पहले इसको सेव किया हुआ है अपने सिस्टम पे, तो RIS फाइल हमने यहां से RIS फाइल लिया और कहा नेक्स्ट, सॉरी, ओके, नेक्स्ट. हमने कहा को ऑथरशिप की एनालिसिस कर दो और कहा फिनिश. सी what I have done, what kind of the data I have. I have collected the data on quality of education, and on the quality of education I find that these are the people who are working in this area of quality of education, and these two people are working together, that is Karim and Hussain. They are working together, and the rest they are not collaborating their efforts as far as my data is concerned. And this is the visualization of the authors. Similarly, if I'm taking a
paid data, I can have the visualization of the co-authors. I can have the visualization of their country, visualization of their the institution, visualization of the other variables what are available. The same data, the same presentation is given in this density visualization form. There I find the same thing is presented like this. And these are the people, those who are prominent, those who are very prominent, and they are most cited in the area of quality of education. अब सवाल पैदा होता है कि मैंने ये डेटा लिया कहां से है। तो आप अपना डायलॉग बॉक्स खोलिए, जो भी आप इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्रोम कर रहे हैं, सफारी कर रहे हैं या एज कर रहे हैं, और वहां आपने टाइप किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जब आपने सर्च किया तो ये तमाम सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब इसमें से ये ढूंढ पाना कि कौन सा हमारे काम का है और कौन सा हमारे काम का नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे काम को आसान करने के लिए एक और फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है पब्लिश और पेरिश। आकांक्षा, आर यू एबल टू फॉलो मी? Yes sir, I'm following you. ये पब्लिश और पेरिश को क्लिक करो तो जो पहली वेबसाइट आएगी वो है harzing.com। इसको जब क्लिक, ये भी फ्री है, इसको क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें तुम्हारे पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन है, विंडोज के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए। और इसका जो इसको डाउनलोड करके सेव कर लो तो ऐसे the dialog box will be appearing once you install the software। अब देखिए कि इसमें ये it is able to import 8 different types of the data: Crossref, Google Scholar Profile, PubMed, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science and external data। ये जो 3 है ये पेड हैं, ये दोनों सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं और इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एंड सम एफिलिएशन इज रिक्वायर्ड। द फर्स्ट 4 आर फ्री एंड दिस डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट काइंड ऑफ द डेटा यू आर यूजिंग। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें गूगल स्कॉलर को क्लिक करता हूं। गूगल स्कॉलर को क्लिक करने पे ये डायलॉग बॉक्स आता है। टाइटल में मैंने किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इसको सर्च किया तो इस तरीके, और वेट ये बहुत टाइम लगाएगा जहां से मैं कर रहा हूं। ओके, ये मैंने 1000 की जगह पे 20 कर दिया। सर्च 20 publications, most cited publications in the area of quality of education। तो ये हमसे गूगल स्कॉलर पे ये कहेगा कि अच्छा ये बताओ कि चिमनी कहाँ पे है। चलिए साहब, ये कप्चा जिसको कहते हैं, कप्चा इसने वेरीफाई कराया और कह दिया कि ठीक है। अब ये 20 वो डेटा इसने कलेक्ट कर लिया है जो काफी साइटेड हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। बट यू सी देयर इज अ बेटर वे ऑफ सर्चिंग द मटेरियल ऑन द वेब इज दैट पुट इट इन डबल कोट। डबल कोट करने पे वो एग्जैक्ट सर्च करता है, और अगर आपने कोट नहीं लगाया है तो जहां भी क्वालिटी आएगा, जहां भी ऑफ आएगा और जहां एजुकेशन आएगा वो सबको लेगा। नाउ इट इज एग्जैक्ट सर्च। आकांक्षा, इज इट मेकिंग सेंस? यस सर, यस सर। अब ये 20 वो आर्टिकल्स हैं जिसको आपने सर्च किया हुआ है, इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव रिजल्ट कर लीजिए। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग है। ये जो मैंने अभी आपको एनालिसिस करते हुए दिखाया कि ये RIS यानी रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम की फाइल में के एक्सटेंशन में मैंने सेव किया था, उसी तरीके से उस डेटा को सेव किया हुआ है। इसको सेव कर दीजिए और इसको सेव जहां भी आप चाहें इसको सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद फॉस्ट व्यूअर का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे क्रिएट कीजिए, डेटा इंपोर्ट कीजिए
और उसको विजुलाइज कीजिए, तो इस तरीके का डायग्राम, इस तरीके का विजुलाइजेशन आपके सामने आएगा। इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. And there are publications exclusively for bibliometric analysis. This is the new trend, that a lot of publications are coming in the area of only bibliometric analysis, systematic literature review और मेटा एनालिसिस पे तो बहुत सारा पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये बिब्लियोमेट्रिक बहुत रिसेंट है एंड वेरी फैशनेबल एंड वेरी साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन द रिसर्च एनालिटिक्स। तो ये दूसरी चीज, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसमें भी पूरे एक दिन की वर्कशॉप जो है वो की जा सकती है, और इसी को यूज करने के लिए गेफी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेफी हैज अ लिमिटेड यूज, दैट इज कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर यूज फॉर बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग। जैसे एक आर्टिकल आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसमें देखा कि उसने कितने साइटेशंस किए हैं, उन साइटेशंस को एक्सट्रैक्ट किया, फिर देखा कि जो आर्टिकल आपने लिया है उसको कितने लोगों ने साइट किया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कपलिंग के लिए इस गेफी का इस्तेमाल किया जाता है। दैट ऑल्सो could be seen as a separate thing. Now towards the end I will tell you a citation management tool which is called as Zotero। ये भी फ्री है, zotero.org, Zotero पे जाइए, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और इसको डाउनलोड कीजिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके का आपका साइन आ जाएगा, ये है Zotero। जो हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे गूगल स्कॉलर को यूज करके जितना डेटा लिया था, वो सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगर इसके बेसिस पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जैसे आप एक किसी वेबसाइट पे गए और यहां पे आपने कहा कि विद इन कोट आपने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आपने सर्च किया और उसमें ये पहली चीज आपको दिखी या जो कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखा आपने उसको लिया और इसको लगा कि यार ये तो अच्छी चीज है, इसको मेरे रेफरेंस में होना चाहिए, मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, यू आर एबल टू सी वेयर आई एम मूविंग कर्सर? Yes, sir. You just press this. This is Zotero's extension. When you will download Zotero, the extension will come automatically. So you click this. तो ये कहता है कि अच्छा इसको कहाँ मैं सेव करूं, this is integrated with your Zotero। तो आपने कहा इसको POP मीन्स पब्लिश और पेरिश साइट पे करना है या माई लाइब्रेरी में, मैंने कहा इसको माई लाइब्रेरी में डाल दो, तो इसने माई लाइब्रेरी में सेव कर दिया। अब मैं अपने Zotero पे जाऊंगा, Zotero पे माई लाइब्रेरी में देखूंगा, तो जो अभी यहाँ पे हमने ये जो अभी ये वाली चीज यहाँ पे ली यहाँ से, वो यहाँ पे सेव्ड है। अब इस पूरे Zotero से व्हाट इज द नेक्स्ट यूज ऑफ Zotero, कि हमने कहा कि जो पब्लिश और पेरिश की साइट से हमने जितना रेफरेंस डाउनलोड किया था उसकी बिब्लियोग्राफी बना दो। तो बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए हमने इससे कहा कि टूल में हमने कहा कि ऐसा है कि मुझे जरूरत है कि इस पूरे चीज को मुझे एक वर्ड के फॉर्मेट में चाहिए। तो ये कहता है यस इट इज पॉसिबल। So for that I can go to add-on, else I can go here, I can select all, I press the right button of my mouse and I say create bibliography from items। तो ये कहता है किस स्टाइल में, APA 7th, APA 6th, Chicago या IEEE या MLO, what I want। So I say that I want APA 7 और मैंने कहा ओके। तो ये एक फाइल हमारे लिए क्रिएट करेगा, फिर पूछेगा इसको सेव करना है कहीं पे, मैंने कहा बिल्कुल सेव कर दो। तो इसने कहा कि चलिए आपके लिए सेव कर देते हैं। इसने सेव किया, जहां सेव किया है इसने उसको देखने की जरूरत है कि क्या सेव किया है इसने। तो मैंने इसको सॉर्ट किया डेट मॉडिफाइड के उसमें,
और ये अनटाइटल्ड बिब्लियोग्राफी के नाम से इसने सेव किया। द एंटायर डेटा is converted into a bibliography. This is a very powerful tool for a researcher because this is the most neglected area by the researcher, but it's very time consuming. Other than Zotero, there are other softwares like Crossref is there, like EndNote is there, like Mendeley is there. Some of them are free, some of them are paid, but the Zotero is free with the full functionality, but the limited space. So I think within this given time, we have been able to look at what NVivo is, what are the basic tenets of NVivo, how NVivo could be leveraged by the researcher in order to make things better for the qualitative analysis. What could be how we can go for importing the data. And though I have only gone for taking the textual data, but we can use images, we can use social media data, we can use audios, we can use videos, we can use PDFs for importing it in the data. Similarly, for the bibliometric analysis, we can use FOSSweaver, Gephi, and Harzing.com, that is the publish or perish website to collect the data and analyze the data and see that what kind of the network is emerging. And towards the end, we went for just cursorily looking at that what are the softwares available for managing the bibliography, managing the citation, managing the references. So that's all from my side. In a given time, I've been able to rush through. Time permits. On some other occasion, we would be able to look at more in more depth and detail these softwares, and particularly this NVivo. This needs 2-3 days time to explore different aspects and to play it more. But that we will do some other time. That's all from my side. Thank you so much, Dhananjay ji. Thank you so much, Anbhuti, for giving this opportunity to interact with your scholars and other academics. Thank you so much. सर, जब हमारी टीम इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, ऑर्गेनाइजिंग टीम हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग एग्जैक्टली यही चीजें सोच रहे थे कि जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड दिया है, तरह की न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू अप्रोचेज जो डेवलप हो रहे हैं और जिनका स्टूडेंट हमारे बेनिफिट उठा सकते हैं, जो हमारे कोर्स में नहीं है, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग वो करने की कोशिश करते हैं खुद से, कुछ लोग अवेयर होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं। ऑल्दो हम लोग भी इसको कभी कभार ट्राई करते थे और किन्हीं फोरम पे जब जाते थे तो जैसे सेमिनार या सिम्पोजियम में चीज़ें सुनने को मिलती थी, घर पर भी ट्राई करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से सर आपने इसको एक्सप्लोर किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए, ये हमारे उस पर्पस को फुलफिल करता है जिसको हम लोगों ने सोच कर इसको ऑर्गेनाइज किया था। और पर्सनली मैं भी, हम जितने भी टीम के सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब उसको कर रहे थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेटेड हुआ हूँ सर। मैं पर्सनली करने की कोशिश करता था, कहीं-कहीं जाके स्टक होता था। आज मैंने उसे जो है एक विजुअलाइज़ेशन डेवलप किया कि कैसे हम उसको करके आगे बढ़ेंगे। और मैं सर एक बात ये भी बताऊँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग इस तरह के जो भी हमारे कुछ न्यू टेक्निक्स और ये हेल्प जो हमको दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि हमको में कि सर हम आपका अगेन आपको इनवाइट करना चाहेंगे और आप जैसे रिसोर्सेज को और भी वहाँ मेरे ख्याल से आपकी एक्सपर्टीज इसमें काफ़ी अच्छी है, तो देखते हैं और आप प्लीज हेल्प करेंगे आगे भी हमें। तो सर इन शब्दों के साथ और मैं आपको ये भी एश्योर करना चाहूँगा कि आज बैठे-बैठे मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि क्यों ना हम उसको, अब सर हम लोग जब क्वांटिटेटिव करते थे तो SPSS, SATA, BMDP, इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल फोरम है या सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से हम लोग करते थे।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसको अपने एक यूनिट के रूप में क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस तरह के सॉफ्टवेयर एनालिसिस को हम अपने करिकुलम में भी रखें, जिससे कि बच्चे बेनिफिटेड हो और हम लोग एक लाइव ट्रेनिंग उनको दें क्लासरूम में भी। आगे आने वाले फ्यूचर में सर हम ये सब प्लान कर रहे हैं। तो सर इन्हीं शब्दों के साथ आपने एक इतना बहुमूल्य समय अपना हम लोगों के लिए शेयर किया सर, शेयर किया, और हम लोगों के साथ सब ये चीजें आपने शेयर अपने विभाग की ओर से और मेरी अपनी ओर से, विभागाध्यक्ष की ओर से, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ हम लोगों के साथ समय बिताने के लिए और अपने एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया, शुक्रिया धनंजय जी, शुक्रिया अनुभूति, और सर, और बंद करने के पहले मेरा पार्टिसिपेंट के लिए एक नोटिस है कि जो अगला हमारा लेक्चर होने वाला है जो 2:30 बजे से, जिसमें हम लॉग इन करेंगे, तो ये जूम पर नहीं बल्कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, ऑर्गेनाइजेशनल रेस्ट्रिक्शंस थे उनके इंस्टीट्यूशन के, तो हमारे एक्स्ट्रा